as we have a module one, as we can start with the module one. So there are few things which which I like to cover in this topic, in this module. The worksheet, row, column, cell, range, formula, functions. These are the topic you already have a file, so you can have a look on 17 to 18 these option. And these are the concepts. When we are using these concept, or we are using these thing, we have lots of tool inside that, and maximum time we are using Excel for the functions. Like these are the functions. On the upcoming classes or upcoming hours, I'll explain you what are the function, what are the formulas and all. We will look at all these functions. Okay, is it clear now? So when I go to next sheet, click on next sheet. They are the features where we can understand the basics of user interface of Excel. Like these are the just a file, home, insert. These are the tabs in which we have lots of groups like font, clipboard, alignment, numbers. We have tool inside of this group. The reason why I'm telling you, most of the time when we use anything, when we type something and we try to do something, so we are little bit of confused. Where are the tool which we can use and make it there happen? Okay, like this is the basic UI. I'm starting from basic, very basics to I'll go to advanced level, so everyone will cope up with that. Another thing, these are the sheet area where all sheets are there. You can see in the image. Then we have in a Excel, why we are using Excel, if I tell you, then we have an option to arranging data. For example, I'll just arrange data in a blank file or blank page. It can be disturbed or it can be interfere between two data. Like example, I write my first name, second name, last name, and I wrote 50s of data, 50s name of a person. So anyhow, I will little bit confused. How will I identify which one is last name, which one is first name? So in the Excel we have option table, like structure. We have something structure, like we can write here and here and here. These are known as cell. Okay. On the top, I explain with the help of some pictures. These are the D, E, F. These called columns. And 1, 2, 3, 4. These are the rows. These are the rows number. These are the columns name. If okay, at any time, if you are not able to understand what I'm teaching you or what I'm trying to explain you, please stop me and ask your question. We can finish that question instant the class. Okay. These are the basic, as maximum of you already know what are the rows, column, and these things. We will just move little bit soon. Like these are the columns name D, E, F. Maximum column name is X, F, D. How I will know? Just control shift and then right arrow key. You can see here is the XFD maximum column. It's all around like 16,000 or something. I don't know the exact figure of it. But when we are talking about row, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, it is 10,48,576. We just press control and down arrow key. You can see there is a row, maximum row is 10,48,576. Okay. So when we are talking about these kind of box, these box, that box, this thing, these are made by the collaboration of column. I'll highlight a column for you, like M column. I highlight with a yellow color to better understand. And the eighth row, I'll highlight with another color. For example, this blue. Okay, so at that point there are some intersection point. There's only one intersection point at this level where the yellow lines and blue line intersect each other and make a box formation. If you are able to see, it's okay. Otherwise, I'll let me zoom little bit. Huh. Now you can see there is an intersection point where the M column intersect with eighth row. So this box, the intersection point, it is called cell. Okay, it will call cell. So if a cell is made, there need to be a cell address. Cell address is always the name of column and number of row.
For example, this can be, what will be the name of column? If I'll say this one is the cell, any of you, कोई भी इसमें से बताएगा कि इस कॉलम का नाम क्या है जिस कॉलम में ये है? M8. M is the column name and 8th is the row number. So the cell address will be M8. Okay, is it clear? So M8 is a cell, or we can say the cell address is M8. आप लोगों को clear ना यहाँ पे? Yes, it is clear. You can see these things which I explained now. You can see here the column B and the row is 17. For example, so we have the maximum number of row, maximum number of columns 16,384. And as I explained you, the column and row intersect at a point which always create a cell. This cell must have a cell address. Cell address always will be K and 35. K35 will be cell address. Okay. Now, when I go to the next sheet, we will talk about what is cell address, how it built, how it made. Right. I just explained right now na ki column and row. Again, the same thing. Okay, there are two types of cell reference. I'll explain this thing when I explain you the cell reference quite good, or with the assignment, then you can easily cope up with that. But for that, we need to know one thing. There are three types of cell reference. One, relative cell reference, where we don't use any kind of sign, dollar sign. Okay. There is another mixed cell reference and absolute cell reference. Okay, we will discuss this thing. This is cell address. This is also a cell address, but different type of cell address. It will call as relative. It will call as absolute cell reference. If there is a cell if there is a cell like this one, so it must have a cell format where we can type a number. Okay, if I type a number at there, so it always come into 8. Okay, if I type 8, so it will always come into number because I typed it. Again, when I type my name Vikas, it will come in text. So you can see there are the different types of data. It is a different type of data. For example, I type today's date. It come in the format of date. Okay, these are the data type which we can use. It is called as cell format. When we have a cell, the cell has we have a control on cell that which is we will type. It will convert automatically according to cell format. Okay, when we go for next sheet, okay, click at next sheet. We are on fourth sheet. This will the sheet. There is a sheet where we can do the practical at the same time. Okay. For example, here I highlight a cell where I need to format this cell as a time, which I type 12. It should be convert into 12:00. This is the time format. Okay. So apart from this sheet, we have a lots of sheet where I separated into two parts. First part I'll cover, second part at the same time you will cover. Okay, I'll explain you how to do it. So now open your sheet and do with me. Like, how can I define the cell format? Just click on cell by left clicking, and at the home tab there is a group name as number. There's the option at the drop down, just click on it, and there are lots of formats. Okay, as I gave you here, whichever I type, it will be automatically convert to time. So find where is the time. That is the option. Just select and then type 12 or something. It will automatically convert into time format. Okay, so you can see 12:01:19:00 something. Next, when I click on date, again the same process. I'll just click at the highlighted cell and select from there short date, long date as I want. So whenever I type here 11:200, so it will automatically convert into date. Okay, why we are using the cell? Let me explain you. Whenever we use the function, now we have lots of function like date function, year function, month function. It will always work when we have the formatted data.
ओके, इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर है सबको? आई एम गोइंग टू फास्ट जस्ट बिकॉज कि ये बेसिक है और ऑलमोस्ट हम थोड़ा सा लेट है, और तब भी अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्लेरिफिकेशन और एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी एट द सेम टाइम। एक और मुझे नीचे वाला करके दिखाइए, कोई सा भी दो इसमें से फॉर्मेट कीजिए आप लोग, प्लीज डू इट योरसेल्फ। कोई सा भी सेलेक्ट कीजिए एंड फॉर्मेट एज असाइंड हियर ना, कि लाइक हियर whatever I type it will be converted into percentage. Just click on it, select the this thing and click on percentage. It will convert into percentage. Okay, please do it. Who has the sheets? Or if you have any question while doing it, please ask. और कोई भी एक कर ले तो प्लीज बताइएगा, we can move on the next sheet. अच्छा कैसे होगा आप लोग बताइए जो आप यहाँ बैठे, अगर मैं फ्रैक्शन पे क्लिक करूं, मुझे फ्रैक्शन चेंज करना हो तो वही वो जनरल ड्रॉप डाउन पे जाके इस पे जाके फ्रैक्शन सेलेक्ट कर देंगे, है ना? हाँ। ओके, एक अनदर क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो आपको पता लग गया कि डेट में अगर मैं यहाँ लिख दूं 2011-2000 तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? बट व्हाट इफ आई वांट 20 then comma then day, okay, 20 not a 20, date like 20 then comma then day then comma, okay, then month then comma and ईयर year. ये हमारे हिसाब से फॉर्मेट हो गया ना? सो वी कैन फॉर्मेट द सेल जैसे हम चाहते हैं। कहाँ से करेंगे, कोई आइडिया, कोई अंदाजा? कस्टमाइजेशन अगेन सेम थिंग जैसे सर ने बताया, हम यहाँ पे आते हैं, इस पे हम एक सेल कोई सा भी हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने येलो हाईलाइट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि अभी हम जब ये लिखेंगे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और इट माइट बी कि अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, अगर मैं इस 20 को हटा के इसको भी 11 कर दूं या इसको 2 कर दूं, डे और मंथ में कंफ्यूजन होता है कभी कभी। और ये होता ही है मैक्सिमम टाइम। हाँ तो इसीलिए मैं इसे लिखना कैसे चाहता हूँ, 2nd of November ऐसे करके लिखना चाहता हूँ ना। तो यही चीज जो हम यहाँ से क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेटिंग, एक ये ऑप्शन हो गया, क्लिक किया हमने तो यहाँ देखिए सारे लिस्ट आ गए जो हमारे पास थे। देन वी हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ कस्टम, जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन एंड क्लिक ऑन देयर सैंपल, there are lots of option, or we can type according to us also. Select any of them and remove it. Then you want like date, so d sample will be here. Okay, sample यहाँ दिखाएगा जैसे ऑप्शन होगा। पहले एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि वो सैंपल हमें दिखाना स्टार्ट करे। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे डेट लिख दिया नवंबर 2000, राइट क्लिक। अच्छा इसी का ऑप्शन जैसे यहाँ से खोलते हैं, एक ऑप्शन यहाँ भी आता है, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल, बोथ आर द सेम ऑप्शंस। ठीक, तो यहाँ पे हमने किया कस्टम, कस्टम से कोई सा भी हमने सेलेक्ट किया, हमने ये वाला सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आके अपने हिसाब से एडिट कीजिए। हमें पहले क्या चाहिए था, एग्जाम्पल के लिए डेट, तो डी 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 जैसे आपको चाहिए। आपको डेट चाहिए था तो 02, यहाँ देख पा रहे हैं आप, डेट चाहिए था। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, डे चाहिए था, उससे पहले कॉमा चाहिए था, कॉमा देन वी हैव डे, डेली लाइक मंडे ट्यूसडे। तो सैंपल में देखिएगा यहाँ पे यू कैन सी द प्रीव्यू, डी 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 शॉर्ट में आ गया, और फिर एक बार लिखता हूँ तो लॉन्ग में आ गया। देन वी कैन चेंज मंथ, तो एम एम, और if you want January February then we can press 3 times. If you want full we can type 4 times. Okay, and so on. बस जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, it will automatically convert into 2nd Thursday November as I want. ठीक है, तो आप लोगों के लिए कस्टम फॉर्मेट ज्यादा जरूरी होगा। ये तो बेसिक वालों को सबको आता होगा ऑलमोस्ट, लेकिन जो आपको यहाँ नहीं मिलता वो आप यहाँ से ढूंढ पाते। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे एक बार आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख के, यहाँ पे एक ऑप्शन है, सर ये येलो सेल है, यहाँ पे मैंने सेल का कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पे जैसा जैसा लिखा हुआ है मैंने, उसे मुझे यहाँ फॉर्मेटिंग करनी है। आप लोग सेम जिसको आता है वो यहाँ पे कीजिए, ठीक है, वो यहाँ पे कीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इस चीज को
आप कीजिए और इस चीज को ऊपर मैं करता हूँ। क्या क्या लिखा हुआ है कोई बताएंगे मुझे? हमें यहाँ लिखना है एक्सेल ट्रेनिंग, बस सिंपल फॉर्मेटिंग है। आई नो कि मैक्सिमम ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू डू दीज थिंग, दीज आर द बेसिक थिंग विच यू आर यूजिंग एट द डे टू डे टाइम। तो थोड़ा सा इसके बाद हम थोड़ा एडवांस पे जाएंगे, जिससे कि जिसे बेसिक नहीं आता एटलीस्ट वो उस लेवल तक आ जाए, फिर हम अच्छे से सीख सके। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट चेंज करना है हमें, फॉन्ट का टाइप, तो हम क्लिक करते हैं और एज ए फॉन्ट हम थोड़ी देर के लिए अल्जेरियन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का कलर चेंज करना, तो आप देखेंगे होम टैब पे ही फॉन्ट पे रिलेटेड है। अच्छा, अगर मैं फॉन्ट से बात कर रहा हूँ तब ध्यान दीजिएगा, वो ऑलमोस्ट सारा मुझे फॉन्ट ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, फॉन्ट का कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर है ऑप्शन, हमने सेलेक्ट किया, जैसा हमें अच्छा लगता है अपने हिसाब से हमने फॉन्ट चेंज कर लिया। अगेन मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है, हाईलाइट विद अनदर वो करके, तो सेम चीज हाईलाइट का यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, ये देखिए फिल कलर, एक यहाँ पे आता है हाईलाइट का ऑप्शन। फिल कलर से भी हम करते हैं ऑफिस 365 में। हमने ऑप्शन लिया और इसको हमें जिस कलर से हाईलाइट करना है, एग्जांपल मैंने रेड कलर से कर दिया, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या, इसका साइज मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अभी कितना है 15, यहाँ से पता लग रहा है मुझे 15 है, मुझे 13 करना है। तो एग्जैक्ट जब मुझे नंबर पता हो तब तो मैं यहाँ से डायरेक्ट टाइप करके एंटर कर दूंगा। ठीक, इसमें अच्छा इसका एडवांटेज क्या है डायरेक्ट टाइप करने का, अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन से देखूं तो आप देखेंगे 10, 11, 12, 13 ऐसे करके है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का करना है, जैसे अगर मुझे 21 करना है या 21.5 करना है, तो मैं यहाँ से मैनुअली एडिट कर सकता हूँ पॉइंट तक भी, जैसे 30.5। ठीक, 30.5। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, सेंटर अलाइन। अब क्योंकि एक सेल में है, 5 कॉलम तक मर्ज करना है। मर्ज करना अगेन एक टूल हो जाएगा कि जितने कॉलम्स है 1, 2, 3, 4, 5 एफ तक हम इसको सेलेक्ट करें, जहां तक मुझे सेलेक्ट करना है 5 या 6 तक। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक टूल का नाम है मर्ज। फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है कि फॉन्ट तो मर्ज नहीं होता, सेल्फ वो होता है, मर्ज होता है। तो ये अलाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये सेंटर लाइन का ऑप्शन वैसे ही हट गया क्योंकि मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल गया हमें। तो हमने इस पे क्लिक करके, मल्टीपल ऑप्शन है कि एक सेल मर्ज करना है या मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज अक्रॉस करके चेंज करके करना है, तो हम यहाँ ऑप्शन कर सकते हैं। अगेन अगर हमें अनमर्ज करना हो तो वहीं पे ऑप्शन था अनमर्ज का, हम वो भी चूज कर सकते हैं। Is it clear? Instructions are there. You can follow with the instruction and you can use this question. Okay. Thank you, sir. Then we go on next sheet. Formatting. Like example, I have a data. Like we have a random data here. Okay. For I gave you for you the data. This one. जैसे जैसे मैं ऊपर आपको बताता रहूंगा, आप इस पे अप्लाई करते रहिए खुद भी खुद। सो वी हैव अ रैंडम डेटा और यहाँ पे वी हैव अ इंस्ट्रक्शन वन बाय वन व्हाट वी कैन डू। सो I just have a data like serial number, name, roll number, subject, and all of these are the sample data. So we'll not think about it. First, the fit the column width. For example, you can see here. You can only see the NAM. E is not clear. Again, subject, SUB. Some things are the hidden. Okay. So whenever we download a data, a sample data, it might be possible. So it will be possible कि data will be not well formatted as well as आपके हिसाब से वो सटीक नहीं बैठेगा, है ना? So you always work on the formatting as well as कि डेटा मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने से ज्यादा जरूरी है कि डेटा हम इसको अपने हिसाब से संभाल के कैसे रखें। ठीक है, मैनेज तो डेटा तब भी ठीक है, मैनेज तब आपको क्लियर होगा when you format data according to you and then find the question and answer according to your queries. तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है fit the column width, select all option. Okay, let me explain you one more thing. There is the row numbers जो हम बात करते हम लोगों ने, there is the column option कि columns are there. On the top we have an option selection, all select. Okay, we can select entire sheet at a time. So one of you can say sheet can be select from there, but inside the sheet all column, all rows, I want to select these things only. So we can select from there. Select all the entire columns and row and then your cursor, please have a look on cursor. जब भी हम cursor को यहाँ रखते हैं working area में, these are called the working area, तो cursor का shape change होता है। Then we can go on sheet column, तो उसका area अलग होता है।
देन रो, उस पे सेम चीज अलग होता है। अगेन हम इन दोनों के बीच में जाते हैं, व्हेन वी गो बिटवीन देम, बिटवीन एनी ऑफ देम कॉलम, ओके, कर्सर विल चेंज। मतलब it gave you option to adjust the column width, as well as you can manage or we can increase or decrease the thing. If you want to increase the column width, just click here and drag it. All column will be all column will be there. Like you want to decrease this, all column will be decreased. You want to get fit. Okay. Okay. There is one more error like this has. It means that text is not filling well in a cell. So whenever we come in between them, just double click. Okay. So data will be column will be adjust according to your data. For example, there is a longest value is 83 point something something 3. So column is adjusted like this, and again in total, this is adjust another time or this thing. I have to click on. Yeah, just select here and double click between them, and double click little bit quick between them, click double click on it. Next, add heading as a mark sheet. For example, I need to add a heading here, mark sheet, MARKSSWT. Okay, we will go one by one. Add, यहाँ पे क्या कि add heading as a mark sheet on the top of the data, or something is changing here. Like when I go on blank cell and click delete, something is happening. Like I just had a random data along with the function and formula. That is why it's just changing. Okay, so we need to fix it. How to fix it? Just select all data. You can select by mouse or by control A, then right click and copy it. Okay, and paste as a value. Right click, and there is an option paste as a value. Go on paste special, then click on paste as a value. Okay, for this assignment I'll explain you one more thing. Is there something, और आप लोग को इसमें से पता भी होगा कि कॉपी और पेस्ट का क्या काम है? अच्छा, बताना आपको कॉपी पेस्ट का क्या काम है, बताओ। कॉपी करना, कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। उससे क्या होता है, एक जगह पे उसकी कॉपी रहती है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाती है। व्हाट इफ कि मैं कट एंड पेस्ट में कट नहीं, मैं कट को नहीं ला रहा बात बीच में, मैं कॉपी पे ही हूँ। लेकिन व्हाट इफ कि मैं कॉपी उस टेक्स्ट को नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका नाम लिखा और नाम को मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 25, फॉन्ट टाइप चेंज कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और मैं पेस्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन आपके टेक्स्ट को पेस्ट नहीं करना चाहता। कुछ तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी, तो उसे हम पेस्ट स्पेशल में जाके उसके फॉर्मेट को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम पेस्ट में जाके उसके मल्टीपल ऑप्शन को, यहाँ देखिए, पेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना जरूरी होगा, कॉपी नहीं तो कट, कुछ तो दोनों में से होना चाहिए। तो वी कैन सेलेक्ट राइट क्लिक, कॉपी, देन पेस्ट ऑप्शन इज अपीयर। नाउ देयर इज द ऑप्शन पेस्ट जो कि हम यूज करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट, तो यही डेटा इधर और पेस्ट हो जाएगा। एंड वी हैव डिफरेंट ऑप्शन ऑफ ड्रॉप डाउन की, ना जस्ट ड्रॉप डाउन की, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। Go on paste special, and there are bunch of it, like all, formula only, values, format only, comment, validation. We will learn how to use validation. These are the things. Column width. Okay. और you want to add, अच्छा आपके पास मान लीजिए यहाँ पे डेटा है और आप सब में 5 ऐड करना चाहते हैं, तो you can add by 5, subtract by something, transpose the data. You can use these things also, है ना। और एक और चीज, I'll do another session also on tomorrow, I think. So we have a lots of questions also over there. आपको जो आज समझ में नहीं आया होगा, you can ask on that the module also, second module also. First we will have your question answer session where you can ask any question which you have from the module 1 or as well as your data. We can work on it. Okay. So first module, today's module will be only all about the basics level. Now there is another option. Okay, we just did this part and this part. Fix the data. Now type your name in highlight cell. Like here is the highlight cell. We can type one of my student name, Amrut. Vikas. This is my name. Now we need to use apply the filter. What is the meaning of filter? If you are using filter, what is the use of filter?
Anyone? Select particular thing. Anyone from the online session? What is the use of filter? Most of are using this filter option. What is the use of that? चलिए आप लोग बताइए फिल्टर में क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक हमें चाहिए तो वो ऑप्शंस देता है. some specific value. Okay. Example. हाँ, same data अगर कई बार आ रहा है appear करता है. अच्छा, और you can have a data like with the gender specification male or female. You can find the male हाँ. and female, Non-male. pass and fail this thing. What if कि मुझे टेक्स्ट के हिसाब से फिल्टर ना करना हो? What if कि मुझे टेक्स्ट के हिसाब से फिल्टर ना करना हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ डेटा लिया जहाँ पे मेल फीमेल का डेटा है और कुछ पोर्शन है जिन्होंने एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि जिनको बोनस मिल गया. सो आई हाईलाइट विद येलो सेल, येलो कलर. ओके, सो व्हाट इफ कि मेल फीमेल तो उसे फिल्टर करके फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं ये तो चेक नहीं कर रहा कि मेल में कितने को मिल गया फीमेल में कितने को. सिंपल मुझे करना है कितनों को नहीं मिला, तो हमें हाईलाइट के हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा. by color भी कर सकते ठीक, फिल्टर में ही जब एडवांस फिल्टर में जाते हैं तो ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास. हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना था, फिल्टर अप्लाई करना था. तो हमने सेलेक्ट किया डेटा को जिस पे फिल्टर अप्लाई करना है एंड क्लिक ऑन फिल्टर. यहाँ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे होम टैब में हमने किया फिल्टर. यहाँ देख पा रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया. जैसा कि सर ने बताया यहाँ से हम पास और फेल के बच्चे को फिल्टर कर सकते हैं. फेल सेलेक्ट किया आपने एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो जितने फेल थे वो आ गए. अगेन यू कैन क्लिक एंड फाइंड द पास, पास वाले आ गए. इसी से रिलेटेड और भी एक अच्छी चीज है, काफी मजेदार, बताऊंगा मैं आप लोगों को. और यहाँ पे हमारा डेटा ये पूरा है. तो फिल्टर लगाने का फायदा एक एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे मैम और सर ने बताया, सबसे अच्छा क्या है कि वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करता हो. अब इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या था, जब हम फिल्टर पढ़ ही रहे हैं थोड़ा सा और एडवांस पढ़ लेते हैं कि फिल्टर में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय कलर. ठीक है, और फिल्टर बाय कलर. सॉर्ट भी अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ. अगर आपने कोई कलर दे रखा है यहाँ से filter कर पाएंगे. अगेन आपने टेक्स्ट पे कोई लगा रखा है तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन देख पा रहे हैं आप. अगर मैं कहता कि मुझे वो नाम चाहिए जिनके लास्ट में ए आता हो, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंड विथ करके ए टाइप कर सकते हैं. एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होता तो फिर मैं आपको कल बताता हूँ. यहाँ ये ऑप्शन है कंटेन. जैसे आपको चाहिए कि अब बहुत सारा कुछ नाम लिखा है, जितनों के नाम के आगे या नाम में टेरी लिखा हुआ है वो चाहिए, तो आप कंटेन्स टेरी, अगर है नाम टेरी तो वो सारा कुछ दिखा देगा आपको. ठीक है, तो हम इसी फिल्टर को यूज करके, अभी तक हम ये तो यूज करते हैं, हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं हम इन ऑप्शंस को छोड़ देते हैं. हैं. When we say text filters, जैसे वहाँ numbers हैं, हाँ हाँ, numbers में भी ऐसा आएगा end with and begin में. Number filter. नंबर में नंबर से रिलेटेड होगा ना. हाँ, क्योंकि देखिए कभी भी जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो जब नंबर में बात करेंगे फंक्शन और फॉर्मूला में भी, तो उनकी कैटेगरी अलग होगी. डेट में बात करेंगे तो उनकी कैटेगरी अलग होगी. सेम फॉर द स्ट्रिंग, टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोला जाता है. ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए अलग, उसमें हद से हद क्या हो सकता है, लास्ट हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, एंड हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है. और नंबर में क्या होगा, ग्रेटर हो सकता है, लेसर हो सकता है, इज इक्वल टू हो सकता है. ठीक है, सेम चीज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सॉर्ट है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं. हमने फिल्टर पढ़ा, यहाँ पे क्या है कि सॉर्ट करना है डेटा. कोई बताएंगे सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट करते कैसे या क्या होता है, यूज क्या है पहले तो आप बताइए ना सॉर्ट का. कुछ एक डाटा दिया उसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक Sequencing में चाहिए हमें. नहीं, वो नहीं, हम डेटा को छेड़ते नहीं, हम डेटा को अरेंज करते हैं. हमें स्पेसिफिक चाहिए वो फिल्टर है. हमें पूरे डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करना. कैसे सीक्वेंस में अरेंज होगा, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग Descending, होगा. हाँ. तो यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये डेटा सॉर्ट करना है, नेम पे भी कर सकते हैं, हर किसी के हिसाब से कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ बोला गया परसेंटेज के हिसाब से. ठीक है, ओके. यहाँ बोला गया परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज सेलेक्ट किया. यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट का. अच्छा, एक और चीज याद रहे आप लोगों को कि लेफ्ट माउस का जो यूज है, माउस मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, लेफ्ट क्लिक जो यूज होता है सेलेक्ट करने के और ड्रैग करने के, उसके बाद की 90% चीज आपको राइट क्लिक से मिल जाती है. जैसे अभी आप सॉर्ट करेंगे, आप सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन था, किसी को ओपन करने का था, रीनेम करने का था. तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको ढूंढना होता है कि जहां कहाँ पे ढूंढे हम, तो कोशिश कीजिए कि अपने राइट क्लिक से ढूंढे आप. ठीक है, जैसे मैं इसी को राइट क्लिक कर दूं
तो anyhow we will get an option of sort, and inside of sort there is a lots of option, smallest to largest, ठीक है, largest to smallest, क्योंकि ये नंबर है, so it always come into like smallest to largest होने की। और उसके बाद यहाँ अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट में वो A to Z या Z to Z करके आएगा। क्लियर? या तो आप यहाँ से कीजिए, अदरवाइज यू कैन गो बाय अ लॉन्ग स्टेप नेम एज होम टैब एंड गो टू एडिटिंग ग्रुप, देन क्लिक ऑन सॉर्ट। ये तो आपको पता लग गया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या होता है। हमने एक बार सॉर्ट कर लिया, क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा सामने और वो हमसे बोलेगा कि दो ऑप्शन, if you want to select, you want to sort expand all selection या entire table, और you want to continue with the selection part। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि if I want to sort this table according to percentage, ठीक है, अगर मैं करता हूँ smallest to largest, तो देखिए smallest में 34 जो है सबसे ऊपर आएगा, then 47, then 48, तो क्या वो इसी कॉलम से होना चाहिए? और यहाँ पे अनदर ऑप्शन इज कि नाम है वो भी सॉर्ट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला या दूसरा? कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द सिलेक्शन करूंगा तो जितना पोर्शन सेलेक्टेड है बस वही सॉर्ट होगा। और इफ आई चूज द एक्सपेंड द सिलेक्शन, ऑल टेबल विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। हम वही चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियो बटन है, आप दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन कर दिया और उसके बाद वी क्लिक ऑन सॉर्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे 70, 57, 52, 58 ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो गया, और अगेन विकास टॉप पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ समझ में, इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है? इशू इज कि आपका सीरियल नंबर यहाँ गड़बड़ हो गया, तो आपको ये बार बार मैनुअली 1 by 1 डालना पड़ता है। जैसे 1, यहाँ पे 2 डालिए, और इसके बाद एक 1 2 को सेलेक्ट करके ड्रैग कर। एक्सेल का एक और खास फीचर क्या है कि आप 1 और 2 लिख के एक्सेल को बस एक सीक्वेंस दीजिए कि आप सीक्वेंस में क्या चाहते हैं। जैसे आपने 1 और 2 में +1 का सीक्वेंस दिया, यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ आप देखेंगे चेंज होगा। एक सेकंड मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने टाइप किया 1, यहाँ टाइप किया 2, एक सीक्वेंस दे दिया मैंने। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो कर्सर को बिल्कुल कॉर्नर पे लाके, कॉर्नर पे लाऊंगा तो प्लस आइकन बनेगा, देन ड्रैग करना है, हमें क्लिक करे रहना है और ड्रैग करना है। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये ड्रैग नहीं करना, तो आप 1 2 लिखिए, 2 लिखिए, एक ऑप्शन ये है, और आप डबल क्लिक कर दीजिए, आप डबल क्लिक कर दीजिए। कैसे कर रहे हैं यार? ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? जो ऑनलाइन है उन्हें कुछ पूछना है प्लीज, मतलब ऑनलाइन में कुछ तो क्वेश्चन आने चाहिए ना। अभी तो ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। ड्रैग भी करते हैं। अब यहाँ से क्या है कि हमने फिल्टर देख लिया, सॉर्ट देख लिया, अब ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि जितने फेल हैं उनको रेड कलर से हाईलाइट करना है। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है इसके लिए, आप एक तरीका क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से फिल्टर पे क्लिक किया हमने, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फेल वाले या पास वाले, जैसे भी ऑप्शन है, देन वी कैन हाईलाइट all data into another color. For example, I'm selecting the bluish color, and then when we clear the filter, यहाँ पे आप देखेंगे pass was highlight with the green color, but the issue is अगर मैं इस fail को टाइप करता हूँ पास, अगर मैं फेल को टाइप करता हूँ पास, तो क्या, अबे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ, जबकि क्या था कि हमें बार बार एक एक करके मैनुअली हाईलाइट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये तरीका तो हमारे लिए वर्थ इट नहीं है। ठीक है, हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए जिससे क्या होगा कि हम जब भी पास लिखें तब वो हाईलाइट होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी हम कुछ लिखे, whenever I write something, so it is a condition, if that condition is applied on that, it should be highlighted with another color, or otherwise it will not highlighted. For example, if I write fail, it should be highlighted by red color.
So whenever I type pair, it should be highlighted from red color. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? We are using formatting, but the conditional formatting. What is my condition? If the condition meets with the criteria, it will format it. Or format can be anything, like highlight, like change the font size, font color. It could be anything. Please have a look on it. हमने select किया यहाँ पे, ठीक, डेटा को select, then click on conditional formatting and highlight. There is the predefined conditional formatting. 5 categories are there. You can use it. Maximum of time, even I can say that 98% of time, you always need only these kind of formatting. Nothing more than that. Only 10% if you want to create your own Excel sheet along with your specific condition, then you can go on new rules where you are designing the rules or you are creating the rules to get highlighted something. Okay, please wait for a second. ऑटोमेटिक एलिमेंट अभी तो इन्हें मैंने किया था, ये हो नहीं रही थी। ऑटोमेटिक हो जाते हैं ना। अभी तक क्लियर है जो मैंने बोला? कुछ पूछना है इतने में? Okay, just select the column where that pass or fail or something. Just click on conditional formatting and you can see अगर यहाँ पे text है, so it will be related to text or string something. So we can go on first thing and see there's a greater than, is equal to, less than, is equal to, between and all. Okay, I can say the text content. दो ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे, अगर टेक्स्ट कंटेन करता है फेल का, ठीक है, और पास का। तो अगर मैं टेक्स्ट कंटेन कर दूंगा तो इशू क्या आएगा? कोई बताएंगे इशू क्या आएगा? मान लीजिए मैंने टेक्स्ट कंटेन किया और यहाँ मैंने लिख दिया पास, सो इट शुड बी हाईलाइट बाय ग्रीन कलर। हाईलाइट हो रहा है आंसर, तो ये भी मेरा आंसर मीट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इससे दिक्कत क्या आएगी? कोई भी एक अंदाजा लगा के बताएंगे मुझे प्लीज। अगर आप फिर से वो फेल को अगर वो हटा के पास लिखोगे तो वो होगा, ये देखिए हो गया ना? क्या इशू क्या आएगा? टिक करके करेंगे शायद, नाम भी नाम मतलब कैसे? एक बार बताइए। नेम भी तो टेक्स्ट में आते हैं, हाँ, वो भी शायद अगर मैं पास लिखूंगा तो होगा ही होगा। पर्टिकुलर लिखेंगे ना वो टेक्स्ट तो मेन इशू क्या आएगा? जब मैं लिखता हूँ पासपोर्ट, तो वो पास भी ले लेगा। तो वो पास को भी ले लेगी। पासपोर्ट में पास तो है, पास लेकिन आपको चाहिए क्या था? बिल्कुल स्पेसिफिक। तो आप क्या करेंगे? इन ऑप्शन को हटा के, अच्छा मैं कंट्रोल जेड से हटा रहा हूँ, जिसका ऑप्शन यहाँ पे एक अंडू होता है, और जब मुझे वापस लाना होता है ये ऑप्शन, ये कंट्रोल वाई, इसे रीडू कहा जाता है। अंडू एंड रीडू एक ऑप्शन होता है। अब इसमें क्या होगा कि मैं सेलेक्ट करता हूँ इस डेटा को, मैं सेलेक्ट करता हूँ इस डेटा को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए टेक्स्ट कंटेन वाला, मुझे चाहिए जो इज इक्वल टू का हो। तो इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास, तो पास वाले रेड कलर से होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब अगर मैं लिखता हूँ पासपोर्ट, तो क्या अब होगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा बताइए? आपने कंडीशन डाल दिया इक्वल। कंडीशन तो पहले भी डाला था ना मैंने, कंडीशन तो पहले भी डाला था, पास ही होना चाहिए तो ही होगा। क्योंकि मैंने इज इक्वल का कंडीशन डाल दिया है। तो आप देखेंगे, अरे ये भी हो गया, क्यों? वो पहले का हटाया नहीं था। दोनों फॉर्मेटिंग ग्रीन दोनों है अभी। दोनों है। क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि पासपोर्ट भी हाईलाइट हो गया और ये पास भी हाईलाइट था, जबकि होना नहीं चाहिए था ना। ये है इस पे मतलब फिर से इक्वल टू हम्म, एक नॉर्मल। बहुत अच्छा। मतलब एक हमने जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी तो हमने उस फॉर्मेटिंग को नहीं हटाया, हमने बस डेटा चेंज कर दिया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने फॉर्मेटिंग इस पे असाइन है? तो हम क्या करेंगे? जस्ट वी क्लिक ऑन द डेटा एंड क्लिक ऑन फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड देयर इज ऑन द लास्ट ऑप्शन इज मैनेज रूल। मैनेज रूल इज समथिंग कि जितने भी रूल यू अप्लाइड देयर ना, इट विल शो एज अ डैशबोर्ड लाइक इट। दिस इज द करंट सिलेक्शन ऑप्शन and there is this worksheet. Okay, so this worksheet we have two options, like first is pass, the cell contain pass, and another is if only pass. So we need to remove one. Which will we need to remove? Contains. Cell contain. Just click on it, which we need to remove, and there is the option delete rules.
ओके ये कुछ नहीं है, ये एक डैशबोर्ड है सेम उसी चीज का. अगेन यू वांट टू टाइप समथिंग और यू वांट टू ऐड अनदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देयर इज अ न्यू रूल. Or if you want to modify something or edit, say the edit rule. And again for duplicate rules. Okay, as you know the delete function. And now click on apply and okay. Now you can see passport is not highlighted and pass is highlighted. ठीक है? So whenever these kind of issue are coming, so you need to check कि conditional formatting में how many conditional formattings are applied there. Okay, it might be possible कि अगर conditional formatting पहले कुछ लगा होगा and you are trying to create new conditional formatting or new rule, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि it will overcome ना, तो वो काम नहीं करेगा दूसरा वाला. अभी तक क्लियर है? अच्छा मजा आ रहा है सबको थोड़ा सा? समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है, सब ठीक है. जो नहीं पता है नया देख हाँ, क्योंकि इस डेटा में ऑलमोस्ट अगर मैं यही चीज यूज कर दूंगा यहाँ पे, सबको पता है कि हम कैसे फिल्टर लगाएं, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट वी नीड टू नो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में व्हाट अदर थिंग वी कैन डू ना, दिस थिंग. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. यहाँ से पासपोर्ट को हटा के फेल कर देते पहले. यहाँ पे हमने फेल को रेड करना था और पास को ग्रीन करना था. आई थिंक आप लोग समझ गए कैसे करना है. यहाँ पे अच्छा फिर कर दूं कि यहाँ पे एक हमने ऐड किया, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यहाँ पे आके जैसे मैंने सेलेक्ट किया था इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फेल. ठीक, फेल क्या है यहाँ पे? हाँ एक चीज और ध्यान से देखिएगा, फेल क्या है यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है. व्हाट इफ कि मैं चाहता हूँ फेल रेड कलर से हाईलाइट तो हो, साथ ही साथ फेल पे कट का निशान आ जाए. एक पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा चाह सकते हैं. तो जो भी हम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चाहते हैं इसमें ऑलमोस्ट हमें सब मिल जाता है. ठीक, कैसे? यहाँ पे अच्छा हम लोग बस यूज वो करते हैं जो हमें सामने दिखता है. जैसे हमने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन में से माउस नहीं चल रहा है, इस ड्रॉप डाउन में से आप दिखेंगे 4-5 ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, आप इन्हें यूज करते हैं. इसके बियॉन्ड थोड़ा सा जाइए, क्लिक ऑन कस्टम फॉर्मेट एंड यू कैन कस्टम द फॉर्मेट एज यू रिक्वायर. Okay, I told you the fail should be cut. Like cut is a tool of strike through. Just click on strike through. Okay, you want not a red color or green color. You want a multicolor option, multiple option of colors also. So you can select from there. Okay, I want this bluish color maybe. Okay, now you want the border, so you can assign the border. There are lots of things. Or you want to change the font type, you can change font type also. Same font style, size, it anything can be adjustable or anything can be format. Now click on OK. So you can see fail is highlighted also and cut also. Or now I just type here fail, so it will automatically come like this. Okay, any problem? कोई भी ऑनलाइन में से कुछ भी पूछना चाहे और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पूछिए. मैं इनको 3 बार ऐड, काम भी क्या हाँ मैं इनको 3 बार ऐड कर चुका, ये ऐड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने बार-बार ऐड करता हूँ. तो सानू सर ने भी किया. अच्छा नहीं हो रही है? ऐड मीटिंग ऐसे ही दिखा. हाँ वही आ रहा है, बाद में वो हट जा रहा है, फिर या तो वो क्लोज कर दे रहे हैं या पता नहीं कुछ मे बी. एक बार ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? और फॉर्मेटिंग में एक सवाल है, ये बहुत इशू आता है. ओके, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेटिंग का एक सर का क्वेश्चन है. ठीक है जी सर. 10 lakhs नॉर्मली फॉलो करते हैं करोड़ लैक्स. कई बार हम रिपोर्ट्स बनाते हैं ना तो उसमें मिलियंस एंड बिलियंस में नंबर को दिखाना होता है. व्हेन आई यूज दैट कॉमा automatically हाँ converts it into lakhs and crores. हाँ Not converting it into बिलियन एंड बिलियन. how to do that. अब ये क्या है, ये पूरा सेल्फ फॉर्मेट का टाइप है. आप यहाँ पे जाके कस्टम करके और अपने हिसाब से सेल्फ फॉर्मेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, एज यू डिसाइड. आपको ये करके रखना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा एडवांस वाला ऑप्शन आप उससे पूछ रहे हैं. जैसे काइंड ऑफ ये वो क्वेश्चन हो गया कि मैं 1 लिखूं और ONE1 से कन्वर्ट होना चाहिए. अगर मैं 10 lakhs लिखूं हाँ तो वो lakh में भी कन्वर्ट हो और मिलियन में भी कन्वर्ट हो. ये मैं जो एडवांस में बताऊंगा. रीजन क्या है कि मुझे सेल्फ फॉर्मेट को एक साथ और कुछ फंक्शन के साथ बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमें सेपरेट करना पड़ेगा कि क्या ये टूल के थ्रू इजीली ऐसा नहीं है.
बस आप एक बार इसे कस्टम करके अपने हिसाब से देखिए, यहाँ से जैसे मैंने DDMM किया था ना, वैसे आप अपने हिसाब से कस्टम करके देखिए, ठीक है? नहीं तो फिर फंक्शन के थ्रू हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है? वैसे अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ पे क्या है कि हमें टूल की हेल्प से एवरेज एंड परसेंटेज जो है, एक बार वैसे यहाँ देखता हूँ क्या क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे आप डेटा देख रहे हैं, बहुत स्कैटर्ड है यहाँ पे, कि ये बहुत ज्यादा डेसिमल में है, ये विदाउट डेसिमल में है, तो ये वेल फॉर्मेट डेटा नहीं लग रहा हमें। हमें इस डेटा को फॉर्मेट करना है कितना, अप टू 1 डेसिमल, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है नंबर में ही, ठीक, हाँ। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। ये 1 डेसिमल हो गया। अगेन अगर हमें बढ़ाना होता है तो इंक्रीज डेसिमल, वैल्यू वही रहेगी, बस उसके डेसिमल्स जो है अपने हिसाब से वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? इतने में किसी को कुछ पूछना है? नाउ देयर इज अ ऑप्शन नेम एज अप्लाई बॉर्डर। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, काफी अच्छा है। व्हाट इफ कि अगर मेरे पास माउस ना हो, देन हाउ टू यूज द टूल्स व्हिच आर लिस्टेड देयर। आप कहेंगे कि दे आर द शॉर्टकट्स जिसे हम यूज कर लेते हैं, तो मैं पूछता हूँ आपको कितने शॉर्टकट याद है, और मैक्स टू मैक्स आप कितने शॉर्टकट्स याद कर सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि यू कैन लर्न ओनली 100 शॉर्टकट्स, 200, 500, नॉट मोर देन दैट। अगर मैं कहूँ कि आई नीड टू अप्लाई, जैसे एग्जांपल ये वाला है, ये देखिए, अप्लाई बॉर्डर, इस पूरे के ऊपर आई नीड टू अप्लाई द बॉर्डर। सो हाउ विल आई डू, हमें कुछ चीजें पता है कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ए। अब कीबोर्ड के ऊपर एक की होता है, की, ALT, alt mean the alternative of what, alternative of mouse. Whenever I press alt key, there are the tabs are activated and all alphabets are there, which tab I want to use. For example, I want to use home tab, क्यों मैं आप लोगों को tools और group बता रहा था, just इसके लिए, in case if you want to work so fast. For example, let me show you. If I want to apply a border, so I'll do this thing instead of doing a home tab, instead of going this. Okay, अगर मैं माउस से करूंगा, बॉर्डर लगाऊंगा, तो मुझे कैसे करना होगा, होम पे जाके देन क्लिक बॉर्डर, एंड अगर यहाँ पे ऑल बॉर्डर है तो बढ़िया, नहीं तो फिर सेलेक्ट ऑल बॉर्डर, यही करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अगर मैं इसे करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, डेटा सेलेक्ट किया मैंने, जो मेरा डेटा था, एंड क्लिक दिस वन। ये बताऊंगा ये मैंने कैसे किया, लेकिन हाँ अभी बताऊंगा ये मैं, एंड टाइप दिस वन। तो ये क्या था, एक कमांड थी जिससे फटाक से हमारा ये लग गया। अगर मुझे इससे कुछ और करवाना है मैं वो भी करवा सकता हूँ। कैसे हुआ, सबसे पहले माउस को अगर मैं साइड हटाऊं, तो ऑल्ट की है अल्टरनेटिव ऑफ माउस, जस्ट सेलेक्ट द ऑल्ट की फ्रॉम योर कीबोर्ड, एंड देयर आर द अल्फाबेट्स आर देयर, F for file, H for home, N for insert, and so on. You want to apply the border, so border is always come in home tab, so click on H, so you came to home tab, and now there is the option of tools also. You can see the border has the option of B, just click on B. Now there is the option of A, what, select all border. ओके, अभी आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा होगा ये 4 स्टेप हमें क्यों करना है, लेकिन जब आप काम इस पे करते रहेंगे तो आपका हाथ कुछ अच्छा बैठ जाएगा और आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक, हाँ, अगर आप करते रहेंगे इसे तो आपका हाथ बहुत अच्छा बैठ जाएगा, और इट इज काफी अच्छा है ये चीज कि आप एक्सेल का यूज जब भी करें तो अवॉइड द यूज ऑफ माउस। ठीक है, अवॉइड द यूज ऑफ माउस, सो यू विल लर्न द शॉर्टकट्स आल्सो। यू विल, और आपको ये तो पता होगा ना कि क्लिक करने से ज्यादा स्पीड हमारी टाइप की होती है, और फिर हमारे पास कुछ कीज होती है तो उससे हम बहुत जल्दी टाइप कर लेते हैं। ठीक, यही काम है शॉर्टकट का। तो अभी के बाद या आज के बाद आप लोग शॉर्टकट की याद ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी इसमें से बोलिए मुझे करना है, इसमें से कुछ भी, जैसे मुझे सारे डेटा को बोल्ड करना है, तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। ठीक, व्हाट इफ कि कंट्रोल बी नहीं होता, फॉर एग्जांपल आप पूछे कि नहीं ये मैं नहीं मानता, मुझे पता है, तो अगर मैं कहूँ शॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करना है, हाउ विल यू यूज द शॉर्ट एंड फिल्टर। ऑल्ट AT होता है। ठीक है, तो फिर आप पहले ऑल्ट दबाएंगे, अब होम टैब पे जाएंगे, तो होम टैब पे जाने के लिए H, वहां पे लिखा हुआ है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, और फिल्टर के लिए क्या था, S। देख पा रहे हो, शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए S, और यहाँ पे क्या था, क्लियर फिल्टर के लिए C। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे फिल्टर हमारा क्लियर हो जाता है। हम सेम स्टेप से बस इस कीबोर्ड के थ्रू जा सकते हैं इजिली। ठीक,
अब यहाँ पे ये क्या है, आइडेंटिफाई कॉलम हेडिंग। अच्छा, हमारी कॉलम हेडिंग क्या है, ये हमें इस कॉलम हेडिंग को इसमें ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था कि ये कॉलम हेड ये जो है ये हमें अलग लगना चाहिए, ये जो कॉलम हेडिंग है हमें अलग लगना चाहिए इस डेटा से और इस डेटा से। तो हम अलग कैसे करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट करके। फॉर्मेट में क्या क्या आता है, फर्स्ट हाईलाइट एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज, कि एटलीस्ट इससे फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। तो आप बोल सकते हैं ये हेडिंग है। अगर मैं फॉन्ट कलर भी इसका एग्जांपल के लिए व्हाइट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, व्हाइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस डेटा और इस हेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सेम चीज इफ आई वांट टू क्रिएट अ मेन हेडिंग ऑफ ऑल टेबल, सो ये मार्कशीट सारी टेबल को कवर करना चाहिए और इससे थोड़ा अलग होना चाहिए। सो वी विल यूज अ टूल नेम एज Margin. margin center and increase the font size. There is a 15, you can type 25 according to your data and highlight with the different color. ठीक है, now select all and apply the border. हम कह सकते हैं अब ये हमारे फॉर्मेट डेटा जैसा हमें मिला था, हमें मिला कैसा था, हमें मिला ऐसा था ये, और वी अरेंज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास। यहाँ पे एक काउंट से रिलेटेड फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फंक्शन अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस टाइम मैं आपको काउंट चीज बता दूंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काउंट विथ कंडीशन है। ठीक है, काउंट विथ कंडीशन है। मैं आपको इफ समझाऊंगा, काउंट समझाऊंगा, फिर ये चीज समझाऊंगा आपको। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ भी पूछना है इतने में? नहीं। नाउ वी आर मूविंग हेडर एंड फुटर में भी। हाँ, हेडर फुटर। और हेडर और फुटर क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? बताओ। हाँ, हेडर फुटर क्या होता है? हेडर हेड टॉप जो का? टॉप में होता है, फुटर से क्यों? नीचे कुछ अगर हम रिक्वायरमेंट क्या है? अगर ना हो तो क्या दिक्कत है ना, पॉसिबल है ना कि अगर हेडर ना हो तो दिक्कत क्या है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो हेडर का टूल क्यों है? नहीं, बताओ बताओ बताओ, मैं कोशिश कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करो। हेडर क्या होता है और हम क्यों लगाते हैं? तो डाटा रेलेवेंट टू पेजेस, कोई कॉमन डाटा ऊपर हेडिंग में। एक बार सर बोलिए, क्या ऑनलाइन बोल रहे हैं? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं हर पेज पे रिफ्लेक्ट हो, वो हम हेडर में डाल देते हैं, तो वो हर हाँ, पेज जैसे पे आती है। रिपोर्ट्स में वगैरह जैसे हर summary पेज में आती है। हाँ बिल्कुल सर, जिससे कि हम बता सकें कि हम, जैसे अगर हमने हेडर डाल दिया किसी के ऊपर, तो जब हम प्रिंट निकालेंगे, अच्छा अगर आप हेडर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, फर्स्ट, और सबसे एंड में 10 लाख 10 लाख 48,000 समथिंग करके था। तो इस पे तो हेडर फुटर वैसे भी नहीं दिखेगा, इस पे तो हेडर फुटर वैसे भी नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ लिख देंगे टॉप पे कि आपका ये, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक्सेल का एक कोर्स चल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने हेडर पे लिख दिया और ये मैंने फुटर पे लिख दिया, तो हमें कैसे पता कि ये हेडर और फुटर पे है? हमें अभी तो नहीं पता ना। अभी तो जैसे आप मैम बता रही थी कि जो ऊपर होता है वो हेडर होगा, फुटर होता है नीचे होता है, अभी एग्जैक्ट वो सेम चीज आ गया ऊपर नीचे वाला। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि हेडर क्या है और हेडर का यूज क्या है? जैसा सर ने बताया कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, हर पेज पे हमें जो एक आइडेंटिफिकेशन देनी होती है कि ये पहचानने के लिए, ठीक, उसके अलावा एक क्वेश्चन कि इस पे हम कैसे पेज डिसाइड करेंगे, इस पे तो हम शीट डिजाइन डिसाइड करते हैं। पेज लेआउट। तो यहाँ पे आप, बहुत अच्छा ऑप्शन है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जाके जब भी आप, नहीं सॉरी पेज लेआउट नहीं, व्यू, हाँ व्यू पे है। अभी जब भी हम काम करते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि टॉप पे मैंने यहाँ लिख दिया, बॉटम में यहाँ लिख दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मैंने टॉप बॉटम पे कुछ नहीं लिखा, मैंने अपने मन से एक डेटा बीच का बनाया, उसके ऊपर नीचे कुछ लिख दिया। ठीक, हमें टॉप पे कुछ है और बॉटम में कुछ है, कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ मार्जिन्स होती हैं, ठीक है, हमें उस मार्जिन्स के अंदर वो डेटा लिखना पड़ता है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन पेज लेआउट, अच्छा, whenever we see the Excel sheet, it always show on a normal. Okay. Whenever I want to see on page break view, so one by one अगर मैं इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट की कमांड दे दूं, तो एक साथ 16,000 कॉलम और 10 लाख रोज नहीं आएंगी। और अगर आ भी गई तो हमारा फायदा क्या? डेटा बहुत छोटा दिखेगा, हमें डेटा देखना भी सही तरीके से। सो वी गो ऑन पेज ब्रेक व्यू, आप देखेंगे यहाँ पे एक पेज ब्रेक व्यू आ गया।
अगर मैं कहूंगा अगर प्रिंट दे दूंगा तो क्या निकलेगा, तो ये प्रिंट निकलेगा सिलेक्शन वाला। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है पेज लेआउट, क्लिक किया हमने पेज लेआउट पे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हेडर में नहीं था, इट इज द पार्ट ऑफ कंटेंट। कंटेंट से ऊपर यहाँ पे कुछ खाली एरिया है जहाँ पे आप कुछ लिख भी नहीं सकते। अगेन कंटेंट के लेफ्ट साइड में, कंटेंट के राइट साइड में, और अगेन कंटेंट के बॉटम पे एरिया है जहाँ पे हम टाइप नहीं कर सकते। टाइप इन द सेंस में किस सेंस में बोल रहा हूँ, जब हम नॉर्मल व्यू पे होते हैं तो यहाँ हम टाइप नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टाइप। सो वी गो ऑन पेज लेआउट। ओके, अच्छा, वी गो ऑन पेज लेआउट। एक सेकंड ना, ये माउस काम नहीं कर रही है, ऊपर क्यों जा रहा है? हाँ, अब जा रहे हैं, इस तरह कर रही है मेरी माउस, लोग समझेंगे मुझे आ नहीं रहा, ऐसा कुछ भी है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एरिया रहता है जब हम नॉर्मल व्यू पे होते हैं, तो वी कैन नॉट टाइप हेयर। सो दीज आर द मार्जिन्स, लाइक टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। सो टॉप मार्जिन इज ऑलवेज रिजर्व फॉर हेडर एंड बॉटम मार्जिन इज ऑलवेज रिजर्व फॉर फुटर। ठीक है, अगर हम कहें कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, तो लेफ्ट हमेशा गटर मार्जिन होता है और राइट हमेशा मार्कअप मार्जिन होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तब। ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल ना कि मैं एक्सेल पे एक डेटा बनाऊं और उसको स्पाइरल करवा दूं, इट कैन बी पॉसिबल। तो स्पाइरल के लिए थोड़ी तो जगह छोड़नी पड़ेगी, तो डेट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। अगर ये भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ डिफरेंट के ऊपर, मान लीजिए मेरी स्पेलिंग गलत होती डिफरेंट की, तो मैं कमेंट डाल के यहाँ पे लिखता डिफरेंट सही स्पेलिंग में, और व्हेनेवर आई गो ऑन प्रिंट ऑप्शन और प्रिंट द शीट, तो वो कमेंट मुझे दिखता है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग दिस डिफरेंस, है ना। सो वो जो मार्जिन होगा उसे मार्कअप मार्जिन बोलते हैं। बात के लिए कुछ नहीं छूटेगा, मैं सब बताता हुआ चलूंगा। whenever you want to write header, just click here or type something. Okay, like you want to type, there is option instead of header type excel and footer में marathon. Okay, I'll type excel and footer में, footer के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to scroll and click on footer and type marathon. ओके, तो हमने क्या किया, वी टाइप ऑन द टॉप हेडर पे एक्सेल और नीचे मैराथन। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें फाइल नेम, शीट नेम, टाइम। अच्छा, एक चीज, फाइल नेम और शीट नेम तो तब भी ठीक है, क्या आप टाइम टू टाइम पे प्रिंट करते रहेंगे, टाइप करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपने काम किया शीट पे, हेडर इज क्लियर, हेडर क्या होता है, फुटर इज क्लियर, फुटर क्या होता है। हम डेट तो चलो लिख भी सकते हैं, डेट तो दिन में एक बार आती है। फाइल नेम लिख सकते हैं, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा। शीट नेम भी एक बार को लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम टाइम को लिखेंगे एक बार बैठ के, टाइम ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो टाइम ही नहीं है, सारा ऑटोमेटिक आना चाहिए। जब हम सीख ही रहे हैं तो हम खुद मैनुअली क्यों काम करें। तो इसके लिए whenever we go on header, इस माउस पे कुछ करो, whenever we click on header, there is an option on the new tab. Okay, there's new tab is appear, header and footer option. Just click on it. Now there's an option header. So which thing you want on header? Okay, page number module 1, ये page module 1 is my sheet name. ठीक, or you want to use these things, you want to use from there, you can use it. Like I want date here, so click on date, find where is the date, करंट डेट। ओके, सो व्हेनेवर फाइल इज ओपन, जैसे कल फाइल ओपन होगी तो डेट कौन सी आएगी यहाँ पे, कल की। अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टाइम पे, करंट टाइम। तो अभी 4:31 हो रहा है। थोड़ी देर में काम करके देखेंगे ये टाइम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेम फॉर फुटर, आप क्लिक कीजिए एंड हेडर फुटर। जब हम एंड करेंगे वो वाला टाइम दिखाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे, एडिट का टाइम नहीं दिखाता वो, जब आप प्रिंट करेंगे, क्योंकि आपको तो ये चाहिए ना कि किस टाइम पे हमारा रिकॉर्ड प्रिंट किया गया है। अगर मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि विकास जी गो एंड प्रिंट समथिंग, प्रिंट डेटा, जनरेट सम रिपोर्ट ना, तो मैं आपको क्या बोलता पुराना दिखा दूं, हाँ। तो आपको कुछ तो होगा ना। आप ये भी बोल सकते हैं हाँ, जब उस पर टाइम नोट कर दीजिएगा कब आपने प्रिंट किया था। रिपोर्ट जनरेट होता है, फिर टाइम दिखता है। हाँ, वो मतलब अपने फील्ड के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, टूल यहाँ पे है। और यहाँ पे अगेन अगर आप मुझसे ये बोलते हैं कि आप एक एक्सेल का प्रिंट आउट लेके आइए, वो आपके सिस्टम पे कहाँ पड़ा है, मुझे उसकी लोकेशन भी चाहिए, तो आप लिखने तो नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फाइल पाथ।
ठीक है, तो ये कहाँ पे है, यहाँ समथिंग करके डाउनलोड्स के अंदर मॉड्यूल 1 में है। ठीक है, जब भी मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे, अब ये 32 हो गया, जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा ये इतना आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, यहाँ पे ये मेरा कंटेंट आएगा। तो याद रहे व्हेनेवर वी गो ऑन नॉर्मल व्यू। अच्छा एक चीज और, हम इसे वापस कैसे करते हैं, नॉर्मल पे जस्ट क्लिक करके। तो हम नॉर्मल व्यू पे हेडर और फुटर तो डिसाइड ही नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज द व्यू ऑफ शीट by clicking on view tab and click the page layout view. Page layout is something where you can find the margins. Margins, it could be the gutter margin as well as footer margin, markup margin and header margin. So click on page layout. Now you can assign any of them, and जब आप वापस जाना चाहेंगे, जैसे वहां पे पेज में ब्रेक नहीं था, अगर आप वापस जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं अभी तो नहीं। एक यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जहाँ पे आपको हेडर और फुटर में ये डिफरेंट चीजें लिखनी है। कोई भी आप में से जो कंटिन्यू प्रैक्टिकल शीट पे काम कर रहे हैं, एक बार लिख के देखिए कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ तक क्या था कि हमने टूल्स के बारे में पढ़ा, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, टूल्स के बारे में। टूल्स में ही कुछ नए टूल्स इंसर्ट करना हो गया, कुछ फॉर्मेटिंग हमने पढ़ी, अलग चीजें हमने पढ़ी। अब हमारा जो एक्सेल है, सबको पता है कि एक्सेल पे खाली टूल से तो काम होता नहीं है, हमें सीखना क्या पड़ता है, फंक्शंस एंड फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टू ऑप्शन, फंक्शन एंड फॉर्मूला। लेट मी क्लियर दिस थिंग। if there is something which is predefined, okay, for example I'm just writing here 2 6 5 and 9, just an example. There is an option which I can, okay, I want to add this thing, I want sum of all these things, okay, this data. So what are the option? I'll just start. अच्छा एक और चीज बताता हूँ, जब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट विद इज इक्वल टू साइन, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और इज इक्वल टू का मतलब होता है कैलकुलेटिव रिजल्ट। तो व्हेनेवर आई जस्ट टाइप ऑफ फंक्शन और फॉर्मूला आई स्टार्ट विद, लेट मी जूम दिस थिंग सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। सबको दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं ठीक है। कभी बोलते तो बहुत तेज बोल जाता हूँ, मुझे लगता है ना। अब यहाँ क्या है कि आई वॉन्ट इन द सेल, लेट मी हाईलाइट टू आइडेंटिफाई द सेल, नथिंग मोर देन इट। हाईलाइट दिस थिंग, येलो सेल एंड दिस वन। आप लोगों से मैं ओपिनियन चाहूंगा और आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मुझे यहाँ सम निकालना हो इन सब का, सो व्हाट आर द थिंग विच आई कैन यूज। कैसे निकालूं मैं यहाँ पे? इक्वल सम, इज इक्वल टू Sum. सम, नेक्स्ट, फिर सेलेक्ट सेल, select this thing, or I told you to avoid the mouse, just click on tab, okay, tab, and now you want to select this data। ठीक है, you know this thing कि हम ऐसे सम निकाल सकते हैं, कोई दूसरा तरीका? any other way you can find the sum? anyone want to ask something? कोई किसी का जरा यहाँ पे वो है, अनम्यूट है, तो मुझे ऐसा लगता है वो तो डर जाते हैं, मुझे लगता है मैं पूछता हूँ सब डर जाते हैं। हमें पूछो भाई, किसी को। ठीक है, इज देयर एनी वे टू फाइंड द सम? मैम बताओ नेक्स्ट। कॉलम को उसको पूरा सेलेक्ट करके नीचे एंटर मारते हैं ना, इक्वल टू सिग्मा वाला साइन जो नॉर्मल। हाँ ओ ये रहा, हाँ अच्छा बोलो। वो वाला। यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक किया आपने, ये बोल रहे हो आप? सम, नहीं सामने ही दिखता है पूरा ऑटो सम, मीटर के। ये रहा ऑटो सम। एक तरीका क्या है कि हमने यहाँ पे टाइप किया और हमने सम लिखा, ये यहाँ पे आ रहा है, हमने इसका रेफरेंस चेंज कर दिया बस, है ना। ये तो मुझे भी नहीं पता था, और ये मैंने बहुत टाइम से यूज नहीं किया था, काफी टाइम से मैंने ये यूज नहीं किया था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं था कि ये भी है। अच्छा यूज करके ही करती हूँ। ऐसी अच्छा इसमें आप कितने यूज कर सकते हैं ये तो देखिए, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपको कहूँ और यूज करना है आपको, तो अब मैं कहूँ कि इफ के साथ और यूज करना है तो नहीं हो पाए। तो जनरल टर्म के लिए मैक्सिमम लोगों के लिए इतना ही यूजफुल होता है जिनका एक्सेल में बहुत काम नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, यहाँ टूल है आपके पास, आपने क्लिक किया, यहाँ सम निकालना है सम, एवरेज निकालना है एवरेज, काउंट निकालना है यहाँ पे वो कर सकते हैं, सेम फॉर मैक्स और मिनिमम। ठीक है,
और कुछ चाहिए आपको तो यू कैन क्लिक ऑन मोर फंक्शन, जो मैंने यहाँ से क्लिक करके निकाला था, डायरेक्ट क्लिक ऑन हियर एपेक्स। यहाँ पे क्या है कि यू कैन क्लिक एनी ऑफ देम जो आपको चाहिए, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट ऑल फंक्शन, और यहाँ पे सारे फंक्शन आपको मिलेंगे, जितने फंक्शंस होते हैं यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर, जस्ट क्लिक ऑन इट। इसमें क्या खास बात क्या है इसके अंदर, इफ आई क्लिक ऑन, बहुत सारे होते हैं, हम एक्सप्लोर नहीं करते। आपको नीड भी नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा कि काफी टाइम से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, सारे फंक्शन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि क्यों पता करना जब काम ही नहीं तो जितने जैसे अगर आप मुझसे बोले तो मैं कभी कॉस फंक्शन का यूज नहीं करता, लेकिन जो काइंड ऑफ एक आर्किटेक्ट होंगे मे बी वो इनका यूज करते होंगे। मैं कभी भी पीएमटी फंक्शन का यूज नहीं करता, लेकिन हो सकता है जो फाइनेंस सेक्टर में होंगे वो खाली पीएमटी ही यूज करते होंगे, है ना। डिपेंड करता है तो हाँ, आपको सारा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको उतना जरूर सीखना है जिससे आपका काम बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, उतना जरूर आना चाहिए आपको कि आपका काम बहुत अच्छा, और उससे थोड़ा ज्यादा ये सीखना है कि जो आपको आता है वो जल्दी कैसे हो सके। आता है वो मैटर नहीं करता, वो सबको आता है, लेकिन आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो सके, बाकी से वो बहुत मैटर करता है ना। तो जैसे आपने ये वाला बताया, ये काफी अच्छा एक ऑप्शन था कि हम इससे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या थी, हम गिने चुने फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका क्या था इसका, कोई दूसरा तरीका, एक तरीका क्या था कि हम इसे मैनुअली यहाँ पे करें, देन क्लिक ऑन प्लस आइकन, 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 ठीक है, और यहाँ पे एंटर मार दें। एक तरीका ये भी था। आप में से कोई भी बोलना चाहे कि ये तरीका यूजलेस था? तरीका तो था, कोई भी बोलना चाहे यूजलेस था? बहुत ज्यादा डाटा हो, मुश्किल होगा ना, एक एक प्लस 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 करते हैं। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शॉर्टकट लेकिन क्या हमें एक्सेल में ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी कभी भी, किसी भी टाइम? किसी भी टाइम व्हाट यू थिंक कि हमें ये करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि और ऑप्शन है। बताओ, बताइए बताइए बताइए। नहीं, या ऑनलाइन में से कोई, सेलेक्टेड डाटा करना हो, जी सर, तो सेलेक्टेड डाटा ऐड करना हो सर। नहीं नहीं नहीं, ऐड करने में तो सर सम का फंक्शन दिया हुआ है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने अभी मैनुअली किया है, सेलेक्ट देन प्लस देन सेलेक्ट देन प्लस दिस थिंग, क्या ऐसा कुछ करने की कभी जरूरत पड़ेगी हमें एक्सेल में? अगर डेटा ज्यादा है तो कुछ स्किप भी हो सकता है फिर, ऐसा करना। हाँ, तो हम नहीं करेंगे इसे क्या यूज? अवॉइड करना हाँ या चाहिए। नहीं पूछ रहे, बोलो नहीं। नहीं, अच्छा, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ या ना में, अगर ये हाँ होता तो और मजा आता, नहीं होता तो और ज्यादा। अगर हम यूज करेंगे तो मैं ये अगला क्वेश्चन पूछता कहाँ पे, ठीक है, फिर आपको ये पता चलता कि एक्सेल के अंदर सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फंक्शन के थ्रू तो होती है, लेकिन कुछ चीजों के लिए फंक्शन ही नहीं होता, कुछ चीजों के लिए फंक्शन ही नहीं होता। अगर अगर थोड़ा सा मैथ ध्यान दे तो एवरेज तो सबको पता होगा क्या होता है। एवरेज क्या होता है, कोई बताएंगे? जिसे हिंदी में हम औसत बोलते हैं, मतलब क्या होता है कि ये नंबर थोड़ा ज्यादा है जैसे, तो हम इन सब को एक सेम नंबर में यहाँ ब्रेक कर देते हैं, एक सेम नंबर में हम यहाँ ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि जितने नंबर हमारे आए हैं, ठीक है, और जितने में से आए टोटल आउटकम, उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं वो डिवाइड बाई कितने नंबर है ये, 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 5.5 इसका एवरेज है। इसी को आप यूज कैसे करते हैं, इज इक्वल टू का साइन, एवरेज, आप यहाँ आते हैं और आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी को अगर ये इररिलेवेंट लग रहा हो तो अभी अचानक से ऐसी बात बोलूंगा फिर उसमें चेंज हो जाएगा, फिर आपको लगेगा ये दोबारा बता दो, ठीक है। बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो तरीके हमने करे, सम, और यहाँ पे हमने एक तरीका किया एवरेज। एक तरीका जो हमें मैम ने बताया, यहीं पे बैठे मैम है, कि यहाँ पे क्लिक करके हम एवरेज पे क्लिक कर देंगे, और बस इसका हमें सेल रेफरेंस चेंज करना है, सेल वैल्यू हमें चेंज करनी है और वो एवरेज निकाल देगा, ठीक है। तरीके इसमें 3 है, तरीके इसमें 3 है, बस ये जो है और ये जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो काइंड ऑफ इसको मैं बोलता हूँ कि ये टूल है, बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक टूल हो गया एडिटिंग के अंदर। इसको बोलता हूँ ये जो था अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, मैंने वहां पे फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। अब इसमें जो था यहाँ पे, जो कि मैंने मैन्युअली डिवाइड का साइन लगा के, यहाँ पे क्या था कि मैंने इसे प्लस प्लस का साइन लगा के किया था, तो ये क्या था हमारा, ये हमारा फॉर्मूला था,
क्योंकि इसमें मुझे मैनुअली करना पड़ा, और इसमें क्योंकि मैंने एक साथ एवरेज का फंक्शन लगाया था, तो ये हमारा क्या था, फंक्शन। तो अगर मैं आप लोगों को क्लियर बोलूं कि फंक्शन और फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये मैंने कैसे किया ये बताता हूँ कि आपकी पूरी शीट पे कहाँ पे वो फंक्शन लगा है या नहीं लगा है। इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल, और एस्केप के ठीक नीचे होता है टिल्ट, कंट्रोल टिल्ट। और एक और तरीका है व्यू टिल्ट, टिल्ट बोलते हैं ना, हल्का सा एस्केप के ठीक नीचे पहला बटन। इसका एक टूल भी होता है, टूल एग्जैक्ट कहाँ होता है, कंट्रोल एस्केप के नीचे होता है, कीबोर्ड है का एस्केप के नीचे बोला। ये ऑफिस 365 पे ये ना डेटा टैब पे या व्यू टैब पे दिखता है कहीं पे, एक बस ऑप्शन होता है शो फॉर्मूला का। एक सेकंड, फॉर्मूला पे जाता हूँ, इंसर्ट क्रिएट यूज मैनेज ये वो शो फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला टैब पे शो फॉर्मूला। इस पे किया मैंने, तो जितने भी फॉर्मूले आपने लगाए होंगे सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सम यूज हुआ था, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। एक हमने टूल के थ्रू किया और एक हमने मैनुअली सम के थ्रू, और इसमें मैंने एसयूएम को ब्रेक करके मैंने खुद कस्टम किया था। ठीक, एक दो आपको बता देता हूँ, जैसे परसेंटेज का कोई फंक्शन ही नहीं है, आप निकाल ही नहीं सकते परसेंटेज को बिना उसके। परसेंटेज होता क्या है, बताओ परसेंटेज क्या होता है। अच्छा, कोई भी ऑनलाइन में से बताना चाहिए, थोड़ा सा मैथ खेलते हैं, फिर हमें एक्सेल में एक अच्छी चीज जानने को मिलेगी। विल गेट टू नो द गुड थिंग कि व्हाट, पहले क्वेश्चन मेरा सिंपल ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज, 100 में से कितना मिलता? एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो उसे हिंदी में प्रतिशत बोलेंगे, तो 100 का कौन सा हिस्सा, ठीक है। तो कौन सा टर्म जो उसमें से 100 में से आएगा वो चीज। एक यहाँ पे क्वेश्चन था फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, जब यहाँ पे आए थे हम यहाँ पे आपने ध्यान दिया क्या, परसेंटेज एंड एवरेज सेम आता है, परसेंटेज एंड एवरेज सेम आता है। अगर आपको उस पे नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या था, मैंने फंक्शन लगा रखा था, फॉर्मूला लगा रखा था। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, और मैं रिफ्रेश कैसे कर रहा हूँ, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन ब्लैंक सेल एंड क्लिक द टाइप द दिस वन, डिलीट की। आप हमेशा देखिए परसेंटेज और एवरेज सेम आएगा। व्हाट यू थिंक कि परसेंटेज और एवरेज सेम होता है? सेम है तभी सेम आ रहा है ना। अच्छा, तो मैथ के टर्म में परसेंटेज एवरेज सेम होता है? अगर सेम होता है दो में पढ़ाई होता। जी सर, वो अलग चीज है। लेकिन सेम आता है ना ज्यादातर केस में। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज एक बार बोलिए। सेम नहीं होता। एग्जैक्टली सेम नहीं होता, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है कि परसेंट और एवरेज अलग अलग होते हैं। अगर देखा जाए तो परसेंट इज समथिंग द 100 का कौन सा हिस्सा, द पार्ट फ्रॉम 100। अगर देखा जाए एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द वैल्यू। हाँ सर, कोई बताएंगे, सर मैम। परसेंटेज का नाम और जबकि हम इसका काम काफी करते हैं, अगर हम देखें तो हम बहुत जगह यूज करते हैं। आप लोग यूज करते नहीं करते, परसेंटेज एवरेज का यूज करते हो आप लोग? हमारे इसमें ये नहीं होता, नहीं, हमारे काम में नहीं नहीं आता ज्यादा। अकाउंट्स वाले। हाँ तो अच्छा, फिर जो जितने अकाउंट्स वाले होंगे ना, अच्छा मुझे एक चीज बता दें, कौन कौन सा आप लोग यूज करते हो, उसमें ज्यादा ध्यान दूंगा फिर, है ना। उसे और क्लियर बता दो। फिल्टर यूज करते हो आप लोग? फिल्टर ने बताया था, फॉर्मेटिंग करते हो आप लोग, हेडर फुटर करते हो आप लोग, ठीक है। तो एवरेज परसेंटेज में सिंपल डिफरेंस होता है, क्योंकि एटलीस्ट ये अकाउंट्स में ज्यादा यूज होता है, तो अभी मैं इस पे पूरी क्लास नहीं खींचूंगा। परसेंटेज इज समथिंग 100 का कितना हिस्सा, और एवरेज इज समथिंग कि हर किसी को बराबर बराबर बांटा जाए, ठीक है। अगर एक जगह 5 होगा, एक जगह 4 होगा, एक जगह 3 होगा, तो हो सकता है 5 में से वो 1 माइनस कर दे, 4 में से 1 माइनस, सबको 3 कर दे, ठीक है, जो उसका एवरेज निकलता है। परसेंटेज अगर मैं कहूँ कि 25 100 का कौन सा हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा है, तो 4% ऐसे करके आ जाएगा। अगर मैं जब भी परसेंटेज और 100 को, परसेंटेज और एवरेज को जब भी कंसीडर करूंगा 100 तो हमेशा परसेंटेज बराबर होगा एवरेज के।
वैल्यू जो होगी परसेंटेज की इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज व्हेन आई कंसीडर माय होल नंबर इज 100, when my total outcome is 100 and assigning a number from 100, so at a time percentage is always is equal to average. समझ में आ गया? दैट इज वाई ये दोनों एवरेज और परसेंटेज सेम आ रहा है। मैं सब्जेक्ट था, मैंने 3 सब्जेक्ट में से दिए थे 300 में से, तो यहाँ पे 100 में से परसेंटेज दिया था, ये देखिए, है ना? और यहाँ पे क्या था, मैंने क्या दिया था, 100 में से हाईएस्ट नंबर थे। एवरेज तभी हुआ ना कि 100 में से दिए थे मैंने। तो जब मैं 100 की बात करूंगा, सो ऑलवेज परसेंटेज एवरेज के बराबर ही आएगा। ठीक, इस डिस्टेंस किसी को पूछना है इसमें कुछ, एनीथिंग? ठीक है, नहीं। अब यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया सम, एक इसको बोलेंगे फंक्शन, और उसके बाद अच्छा यहाँ वाले बताया था एवरेज, ये हो गया फंक्शन। क्योंकि इसे मैनुअली हमें बाय 4 लगाना पड़ा है, तो ये फॉर्मूला इवन इसमें फंक्शन है, लेकिन इसे फंक्शन के साथ साथ हमने खुद मैनुअली भी किया है, तो फॉर्मूला और ये सेम था, बस ये बाय यूजिंग टूल था और ये बाय यूजिंग फंक्शन था। आपको सम निकालना है यहाँ पे बाय यूजिंग फंक्शन और बाय यूजिंग फॉर्मूला। बताइए कोई कैसे निकालेंगे फंक्शन से सम, कैसे निकालेंगे? इक्वल टू थोड़ा तेज बोलो बोलो बोलो। ब्रैकेट हाँ, सेलेक्ट सेल्स सी select entire data and press enter. Okay, now there formulas कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से इक्वल बस मैनुअली ये 19 plus 48 plus 20 ऐसा plus इससे प्लस 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 ये देन ये एंड सो ऑन पूरा कर देंगे हम। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अच्छा, मैम ने बोला कि यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ सेल ये करने के, जैसे हमने सेल लिखा है, ये किया है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ इज इक्वल टू 23। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए इतने डेटा को कम करते हैं जिससे कि हमारा इजिली काम हो जाए। ठीक है, 3 पे ही काम करके देखते हैं, समझ नहीं है अभी हमें। अब यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू 42 देन प्लस 43 प्लस 14। ठीक है, आंसर इज सेम। क्या तीनों चीज सेम है ये? अच्छा, यहाँ पे चेंज क्यों आ रहा है? अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपने पूरे को लिया था पहले। नहीं। कम अच्छा, मैं आप लोग को मैं एक चीज सिखा देता हूँ इसमें। जब कोई हम रैंडम डेटा बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बोलता हूँ, आप मुझे बोलते हो कि मुझे एक फाइल पे हेल्प चाहिए, और आपके वो जो एक्सेल की फाइल है वो काइंड ऑफ मान लीजिए कि ऑफिस का सेल्स डिपार्टमेंट का या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का है जहां मुझे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, आप मुझे हो सकता है ना कि आप सब कुछ दिखा सकते हैं मुझे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन डेटा होना जरूरी है, वरना मैं कितना अंदाजा करके निकालूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, एक डमी डेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डमी डेटा बनाएंगे। यहाँ पे आते, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर किया। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे है मेरा नेम। मैं क्वेश्चन ही बनाता हूँ, सब्जेक्ट 1। ठीक है, सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे चाहिए टोटल। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा, और मैं सीरियल नंबर लिखूं 1 2। डबल क्लिक। हाँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए नाम लिखता हूँ, नाम है मेरा ABCD E। डेटा कुछ भी हो सकता है ना, जितना डेटा हमें समझ में नहीं आ रहा, जैसे इसमें हमें नहीं है तो हम इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मुझे इसका सम निकालना का फंक्शन नहीं आता। ठीक है, तो आप मुझे कुछ भी ऐसा करके दे दीजिए कि यहाँ मैं नंबर लिखूं और यहाँ इसका सम निकल जाए। जस्ट एग्जांपल है, इसे अज्यूम कीजिए कि आप कोई एक इनवॉइस वगैरह बना रहे हैं और आपके स्टाफ की सैलरी उस पर लिस्टेड है, तो क्या कोई भी अपने स्टाफ की सैलरी रिवील करना चाहेगा, कितनी सैलरी है क्या है? लेकिन आपको सैलरी का कुछ अमाउंट तो इसमें डालना पड़ेगा कि रफली आइडिया हो जाए, तभी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आप डेटा डमी डेटा बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पूरे से सेलेक्ट कर लिया। जब हम कीबोर्ड से काम करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो हमारा हाथ ज्यादा अच्छा बैठ जाता है। तो हमें पहले पता होता है कितने पे काम करता हूँ, आधा तो काम से बचते रहते हैं, इसीलिए हमारे शॉर्टकट से काफी काम निकल जाते हैं। हम क्या करेंगे, किसी एक पे यहाँ लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल, मुझे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में नंबर असाइन करने हैं, और मैक्सिमम मेरे नंबर कितने हैं, 100 असाइन करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे रैंडम नंबर चाहिए, तो एक रैंड बिटवीन का फंक्शन होता है, क्योंकि रैंडम में मुझे कुछ नंबर
मुझे रैंड बिटवीन स्पेसिफिक मैंने क्या किया, हाईएस्ट दे सकता हूँ मैं 100 में से, तो मैं रैंड बिटवीन दूंगा। स्टार्टिंग नंबर इट कुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 और 0 देन कॉमा 100, ठीक है। और यहाँ मैंने एंटर कर दिया, तो देख पा रहे हैं आप, कुछ भी नंबर आ गया रैंडमली, कहाँ से कहाँ तक आएगा ये 1 to 100 1 to 100। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश कैसे कर रहा हूँ, ब्लैंक एरिया पे जाके डिलीट का बटन दबा के। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप सम निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डबल ड्रैग वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देखिएगा, शॉर्टकट के साथ ही बताता हूँ। जब हमें एक बहुत बड़े डेटा पे काम करना होता है, ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने फंक्शन लगाया, उसको इधर से इधर ड्रैग किया, उसके बाद मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया या डबल क्लिक किया, मल्टीपल स्टेप। मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे डेटा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना। अब यहाँ फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन हमेशा सबसे ऊपर वाले पे लगेगा, इज इक्वल टू, खुद लगेगा वो, RAND, रैंड बिटवीन, ऑप्शन आ गया, आपने एरो की से सेलेक्ट कर लिया, देन प्रेस द टैब की, जो टैब हमारे पास ऊपर से यहाँ होता है। देन यहाँ पे कभी भी आप जो फंक्शन लगाएंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, फंक्शन लिखते साथ ही फंक्शन का सजेशन आता है। देन उसके बाद आप एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब होता है पैरेंथेसिस ओपन करना। पैरेंथेसिस क्या बताता है कि ये फंक्शन बिटवीन यहाँ से और जहां पे मैं इसे क्लोज करूंगा वहां तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह पहले जो फंक्शन काम कर रहा था वो करेगा। और इसके नीचे आप ये देखेंगे यहाँ पे बॉटम एंड टॉप लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इसके आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। तो एक फंक्शन अगर मैं पूछूं, फंक्शन क्या है इसमें, रैंड बिटवीन, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रैंड बिटवीन के बाद बॉटम नंबर कितना, मान लीजिए 10 एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे एक सिंबल आएगा जो क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट्स को, हमें कैसे पता कि ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट दोनों अलग अलग है, बाय सेपरेशन पॉइंट। और सेपरेशन पॉइंट एक्सेल में क्या होता है, कॉमा, ठीक है। और टॉप की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए इस बार मैं देता हूँ 90, ठीक है, और मैंने कर दिया शिफ्ट से बंद, हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। अब ये फंक्शन यहीं तक काम करेगा। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो वो एक सेल में आएगा, और आई प्रेस कंट्रोल देन एंटर, तो एंटायर रेंज में आएगा। So whenever you want to work in entire range or in a column or row, just select all the Enter. cells where you want to control, then enter, then write your function or formula whatever is it, and then control enter। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि मैं आपको समझा रहा था तो इसीलिए इतना टाइम लग रहा था। अगर मैं इसे ऐसे करूं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगा दूं रैंड बिटवीन का, और यहाँ पे मैं नंबर असाइन कर दूं, तो मुझे बस इतना टाइम लगेगा, मैं कुछ स्टेप्स से बच गया। और ये इट इज नॉट अ नंबर जो कि मुझे असाइन करना है, इट इज जस्ट अ सिंपल फिगर जो कि मैंने रैंडमली उठाया हुआ है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका सम निकाल सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मुझे इसका सम निकाल के दीजिए, तो आप इसमें सम निकाल के रख सकते हैं। अब एटलीस्ट वी कैन चेक कि विद द रैंडम डेटा की आंसर इज कमिंग, आंसर ट्रू और फॉल्स। The main issue is whenever you refresh the sheet na, your data will be changed, because whenever you refresh it, it always consider the function random between any bottom value and top value. So we need to fix that thing. For example, I'm fixing that number, or I want to change this number. Just press delete and select this one, then right click, go on copy, and I told you the paste option, there is a paste special. I'm going to use the paste special option, paste special, then more option, or there is an option 1 2 3 is value. Okay, I want to show what are the options here. Just click on drop down and then paste option, and यहाँ पे there are lots of options, okay, which you can choose. I'm selecting here value, okay, value, and then press okay. Now whenever I refresh it, data will not change. Okay, clear है इतना? किसी को कुछ पूछना है? ठीक, अब नहीं देना चाहता। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने यूज किया था सेम चीज, मैंने आपको शीट दिया था,
I'll just solve this thing and you need to work on that portion. Again, first of all क्या है यहाँ पे rand between से I just inserted random data. अगर मुझे मैनुअली करना होता काफी टाइम लग जाता. I just inserted random data. So always it is advisable whenever you start working, just copy and paste as a value so you can just identify if your function is well working or something. Okay. So there are the instructions. There are the instructions जिसको कि हम फॉलो करके वी विल सॉल्व इट. लाइक यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है? पहला, हम इस पूरी रेंज को बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सेलेक्ट, देन गो टू होम टैब एंड क्लिक बॉर्डर ऑप्शन, क्लिक ऑल बॉर्डर और ऑल्ट एच बी ए द शॉर्टकट की एज यू नो. हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक रेंज को नाम देना है. ठीक है, एक रेंज. अच्छा, फंक्शन भी आपको सारे याद नहीं करने. मैंने कहा था ना अभी कि आपको फंक्शन सारे याद नहीं करने. फंक्शन में क्या होगा कि हम खुद का फंक्शन बना सकते हैं. ओके, जो हमें लगता है हम खुद का फंक्शन बना सकते हैं. और आपको सारे शॉर्टकट याद नहीं करने, हम खुद का शॉर्टकट भी बना सकते हैं. ठीक, मैं आपको सिखाता हूँ अपने खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं. फंक्शन के पहले रेंज बताता हूँ. अब जब हम काम करते हैं एक सेल पे, जैसे ये सेल है और ये भी एक सेल है, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँ तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? एक रेंज जिसमें एक से ज्यादा सेल है. तो whenever we are talking about multiple cells, so it will call as a range. So ये क्या कहलाएगा? हमारा रेंज. रेंज. और रेंज को, रेंज में क्या होगा कि एट अ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यही होगा. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेपरेशन के लिए दो आर्ग्यूमेंट का सेपरेशन पॉइंट क्या होता है? हमारा कॉमा. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं. हो गया. अगर मैंने आपको बताया कि हमें कुछ आर्ग्यूमेंट में सेपरेट करना है, ठीक है, इतने पे दिखेगा. अगर आई नीड टू सेपरेट टू आर्ग्यूमेंट, आई विल यूज कॉमा. एंड व्हेनेवर आई से कि यहां से लेके वहां तक और यहां से स्टार्टिंग पॉइंट एंड आई विल यूज अ रेंज ऑप्शन नेम एज कॉलन. ठीक है, आई विल यूज कॉलन. मैं बताऊंगा अभी कि हम ये कहाँ यूज करेंगे. व्हेनेवर वी वर्क ऑन फंक्शन तो ये सारी चीज बहुत यूज होती है. Whenever I want to draw a boundary, I'll just put open parentheses and then end boundaries, close parentheses. ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? चार चीज. Okay, so first thing we need to border all, so we all border and the name range is Excel method. I want to give the range, name of this range. अभी अगर मैं बोलूं कि what is range, तो यहाँ B4 से start होके कहाँ तक का है? ये F10 तक. ओके, अभी हम इसको यही बोलेंगे B4 से F10, B4 से F10, B4 से F10. अगर मैं एक नई शीट ले लूं तो उसका B4 अलग होगा, F10 अलग होगा. तो हमें कैसे पता कि कौन सा B4 से कौन सा F10? या तो हम ये बोलना स्टार्ट करें कि फॉर्मेट एंड फंक्शन नेम रेंज, जो उसका शीट नेम है उसका B4 से F10. ठीक है, इससे अच्छा क्या होता है कि इस पूरे को हम एक नाम असाइन करेंगे. और नाम कैसे असाइन करेंगे? just select the cell or select the range and there is a name box. Okay, just click here and type the name as a Excel method. तो Excel method यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसीलिए Excel. अगर मैं यहाँ नहीं, ये पेस्ट. अच्छा, यहाँ मैंने ओके मैंने पेस्ट वैल्यू नहीं किया इसमें, तो राइट क्लिक, मैंने कॉपी पेस्ट किया था सिखाते टाइम. पेस्ट एज अ वैल्यू. अब मैंने सेलेक्ट रेंज को सेलेक्ट किया, देन मैं यहाँ पे इसे नाम असाइन करता हूँ एक्सेल मैराथन. ठीक है, हाँ, बस मुझे स्पेस नहीं देना, उसका ध्यान रखना है मुझे. अब एक चीज ध्यान दीजिए कि मैंने इसमें क्या नाम दिया इसको? एक्सेल मैराथन. अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नई शीट ऐड करता हूँ. इस प्लस बटन से एक नई शीट ऐड होती है और आई जस्ट टाइप इज इक्वल टू EXCEL. हो गया खुद एक फंक्शन. ठीक, तो यहाँ पे वही डेटा उठ के आ गया. तो कैन वी से कि हमें जब डेटा बनाना होता है तो एक फंक्शन तैयार कर लिया मैंने. अभी बोल सकते हैं ना कि हमने एक फंक्शन तैयार कर लिया जिससे कोई पेस्ट ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको एक रेंज करने नहीं. इस एक और चीज की मजेदार है. जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप किसी और शीट पे, शीट 1 पे हैं, आपको कहाँ जाना है? उस रेंज पे वापस. तब क्या करेंगे? यहाँ से ऑप्शन है एक्सेल मैराथन जो आपने नाम दिया है, क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वहीं पे आप. और इवन आप कहीं पे भी होंगे, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सम निकाले, देखिए हम यहाँ पे आए
और हमने कहा कि फाइंड द सम ऑफ एक्सेल मैराथन। अच्छा, अभी जो किसी मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि ग्रैंड सम वाला, सेम मुझे एक आइडिया है कि हम इससे भी कर सकते हैं कि असाइन द नेम ऑफ रेंज। अगर आपने नाम दे दिया उसे, तो अब क्या होगा कि मैं इसका लिखता हूँ इज इक्वल टू सम ऑफ, अब मुझे क्या देना है इसमें, रेंज देना है, नंबर 1 नंबर 2 या तो रेंज, तो मैं क्या करूंगा, इसे लिख दूंगा एक्सेल मैराथन। तो अब ये क्या करेगा, मेरे रेंज में जितना भी था उसका सब निकाल के दे देगा मुझे। समझ में आया सबको कैसे नाम असाइन करते हैं, क्यों नाम असाइन करते हैं? अच्छा, क्यों नाम असाइन करते हैं, इसका एक और अच्छा तरीका क्या होता है कि फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट में वी आर गोइंग टू यूज मैक्सिमम टाइम वी आर यूजिंग द रेंज, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू असाइन द नेम, जिससे कि हमें बार बार वो सेलेक्ट करने में एक ग्रुप दिक्कत ना हो हो। जाती है, ग्रुप। हाँ, और दिक्कत और होती है कि आप जब से सेलेक्ट करेंगे ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, जब माउस अगर ठीक ना चल रहा हो तो, और आपने रेंज नाम दे दिया तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम प्री डिफाइन इसे बना के रख लेते हैं। अब मैं जब रिलेटिव सेल रेफरेंस पढ़ाऊंगा ना उसमें दिक्कत समझाऊंगा आपको क्या आती है। अब यहाँ पे क्या है कि दो चीज हो गया, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं इस रेंज का, कैसे? बाय क्लिकिंग ऑन दैट। अगर आपको इस टूल से निकालना है तो इस टूल से आप बस 5 चीजें अच्छे से निकाल सकते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। ओके, इफ यू वांट टू यूज अनदर ऑप्शन, अनदर फंक्शन फ्रॉम दिस, यू कैन क्लिक ऑन फंक्शन, और इफ यू नो द फंक्शन नेम लाइक मैक्सिमम। अच्छा, इसमें एक और चीज है एक्सेल में कि 60% केस में फंक्शन इज सेम जो से इंग्लिश में बोलते हैं, लाइक आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम नंबर इन दिस रेंज, तो मैक्सिमम एक इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स शॉर्ट फॉर्म में, और फिर मैंने सेलेक्ट क्या कर दिया, रेंज। ठीक, तो इसका एक मैक्सिमम आ गया। सेम फॉर मिनिमम, मिनिमम में क्या कर सकते हैं हम, मिनिमम हम लिखना ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा ही। एक अच्छी चीज क्या है और एक्सेल में, when I'm going to type something or trying to insert a function, I'll go is equal to then minimum. There are the list of functions and the suggestions of functions. What these functions are doing, like I don't know about the mean ifs, for example, so I can learn कि क्या करता है, return the minimum value या something. Return मतलब it will print here, मतलब it will show in the cell, इसको बोलते हैं रिटर्न। अब मिनिमम, अगर रेंज सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट योर रेंज, अदरवाइज जस्ट टाइप एक्सेल मेथड बिकॉज यू जस्ट असाइन द रेंज। ओके, नाउ शिफ्ट एंड क्लोज द पेरेंथेसिस, द मिनिमम नंबर इज 1। अब यहाँ पे था कि फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज इन सेल, हम निकाल चुके हैं एवरेज को, ये आप खुद करेंगे कैसे, आप बताइए, बताओ एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज और वो ब्रैकेट में मैराथन, एक्सेल मैराथन। जो आपने नाम लिखा होगा आप उसे लिख देंगे, है ना? हाँ। आप सीख गए सर। अब काउंट कैसे निकालेंगे? हाँ? अगर हमें काउंट करना है तो काउंट हाउ मेनी नंबर्स इन सेल। अच्छा, काउंट कैसे निकालेंगे? नंबर देखो हम ट्राई करेंगे, अगर हमें नहीं भी आता तो इज इक्वल टू काउंट काउंट आ गया, काउंट एक्सेल मैराथन। हाँ काउंट आ गया, या तो आप रेंज सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए क्यों हमने नाम असाइन किया, नाम दे दिया इसलिए हमने। if I'm going to use select this one by using ये चीज माउस, तो इसमें कुछ दिक्कत आएगी अगर मेरा माउस पे हाथ सही नहीं बैठा है। और अगर मैं इसको ऐसे ट्राई करता हूँ, गलती से ये हो सकता है एंड पे जा सकता है। कितनी बार आप देखिए जैसे आप सेलेक्ट करते हैं एंड पे चला जाता है। रेंज नेम फिर आपको ऐसे तो गलती नहीं होगी। तो रेंज को नाम देके फायदा यही होता है कि आप इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक है हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन समथिंग, कुछ भी नंबर इसमें दे दिया जाए उससे कितने बड़े हैं, इसे हम निकालेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी मैंने आपको काउंट से रिलेटेड 3 फंक्शन छुड़वाए हैं, क्यों? क्योंकि मैं काउंट की कैटेगरी पढ़ाऊंगा, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है।